Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be discussing our second class of IPC, and in which I will be discussing general explanation. I have already said previously, general explanation means the डेफिनेशन सेक्शन. एक्सप्लेनेशन से वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसमें in this section in this chapter of IPC we will be dealing with the explanations of different words. Fine. So this chapter 2, that is the general explanation, extends from section 6 to 52A. Extends from section 6 to 52A of IPC. So we will be starting with section 8, that is gender. Section 8. Okay. Gender. Gender means we all know male, female, right? But in IPC, why we are studying this definition is, in IPC and in all the other laws also, the pronoun which is used is he. In all the laws mostly we use the he pronoun to denote person. He pronoun denotes person. Okay. Whether it be male, female, transgender, anyone, a person is denoted by the pronoun he in IPC. Okay. So अगर किसी भी सेक्शन में he pronoun यूज हो रहा है, does not mean कि it is only applicable to male, but it means he denotes all the genders. Okay, clear? मैं सारे 6 to 52A डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी कॉमन वर्ड्स विच मीन द सेम इन आईपीसी विच इज इन इंग्लिश. ओके, जो उनके इंग्लिश मीनिंग्स हैं वो ही आईपीसी में भी हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं सारे डिस्कस नहीं कर रही हूँ. बट द इम्पॉर्टेंट वंस विच we need to understand, which is different in IPC than its English meaning, that I will be discussing. Just a second. Sorry. Yeah. So the second section which we'll be discussing is person. Section 11. Section 11 is person. Person includes, we all know what is person. As I said, gender means he, she, everyone. Person means all the people, any of us, fine. But person here includes individual. Individual means one person or group of individuals or any company, any association, these are all included in person. Okay, person includes all of these. Individual, group of individuals. Individual मतलब एक इंसान को पर्सन बोलते हैं, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी पर्सन बोलते हैं. मतलब whenever there is an offense explained in this way कि if this act is done by any person, पर्सन में वहां सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है. अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी पर्सन में ही हम रेफर कर रहे हैं. जहां भी पर्सन है इट मींस वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनी या एसोसिएशन एक्सेट्रा. ओके, दैट मीन्स कंपनी मीन्स any company which functions. Okay, that can also come under the definition of person, and any association also. Then how will we understand this?
कि who all are included in person? We will understand it in this way. Anyone who is having a legal identity is a person. ठीक है. कंपनीज की भी लीगल आइडेंटिटी होती है. वी कैन मेक कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. अगर ऐसा है कि किसी एक सिंगल पर्सन की गलती नहीं है, but the company's mistake that it has committed, मतलब maybe a fraud or something, if a company commits a fraud, then the company will also be liable. So liable मतलब उसको भी अपने एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कंपनी को भी. So company also comes under person. Any individual who holds the legal identity is included in person. इसमें कौन कौन हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन हो सकते हैं. नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जैसे वी द पीपल, नेचुरल पर्सन. देन वी कैन हैव हियर लीगल पर्सन. लीगल पर्सन कौन हो गए? जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है. The one who are not natural person, they cannot breathe, but we have given them a legal identity. Legal identity जिनको हम दे रहे हैं, legal person उनको हम बोल सकते हैं. For example, company. For example, associations, any kind of associations. Okay. Then ideal person. Ideal person. Ideal person में कौन आ गए? God. God is the ideal person. So can we hold God liable? Yes, we can, because we are giving God also a legal identity. भगवान के नाम पे भी बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं. ये सब होता ही है, मंदिरों का है ना, भगवान के नाम पे बैंक अकाउंट एक्सेट्रा होता ही है. तो पर्सन में आइडियल पर्सन भी इंक्लूड होंगे. आइडियल पर्सन कौन है? God is the ideal person. Okay. Then next we will be discussing movable property. Section 22. Movable property. Okay. Movable property. मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? एनी प्रॉपर्टी विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जिसकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, एक जगह से दूसरे जगह जिनको शिफ्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टीज को, ये हो गए मूवेबल प्रॉपर्टी. दैट वी ऑल नो. बट इन केस ऑफ लॉ, मूवेबल प्रॉपर्टी विल ऑल्सो इंक्लूड any property which is once not movable but it can be moved and without depreciating its value. जैसे कि standing timber. Standing timber क्या होता है? standing timber, timber means wood. Timber is wood. Standing timber means कोई ऐसा कोई भी ट्री जो कि जमीन में लगा हुआ है, अभी कोई पेड़ जो लगा हुआ है, बट वंस इट इज कट डाउन एंड इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लकड़ी जब काट के पेड़ों से हम मूव कर सकते हैं, देन इट विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट? नॉट ऑलवेज. अगर कोई ऐसा क्रॉप है जिसको काट के उसको मूव करने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाए, वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए, कम हो जाए, तो उन प्रॉपर्टीज को, उन क्रॉप्स को हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे. बट फॉर एग्जाम्पल सम वुड्स लाइक सैंडलवुड. सैंडलवुड इसका क्या होता है? सैंडलवुड मीन्स चंदन. तो चंदन की लकड़ी जब हम काट लेते हैं पेड़ से और उसको मूव करते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इट्स वैल्यू गेट्स इंक्रीज्ड, डेप्रिशिएट नहीं होती है, क्योंकि चंदन के पेड़ की इतनी कीमत नहीं है जितनी चंदन की लकड़ी की है कटने के बाद
जब हम उसे मूव करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ वुड्स, जो कि स्टैंडिंग टिम्बर यानी खड़ा, जो लकड़ी जो खड़ी है, फाइन, तो उनको हम पेड़ नहीं कह रहे, उनको स्टैंडिंग टिम्बर बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब हम उनको when we disconnect it from the ground, when we cut it and move from one place to another, तो इनकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट नहीं करती है, यानी इनकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती है। देन these kinds of woods are also included in our movable property. Fine. Then we will be doing section 23, wrongful loss and wrongful gain. Okay. Wrongful gain and wrongful loss. इन दोनों में क्या डिफरेंस है गेन और लॉस का? दोनों रॉन्गफुली गेन हो या लॉस, दैट इज वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेक्शन। ये रॉन्गफुल वर्ड का क्या मतलब होता है? रॉन्गफुल मीन्स नॉट बाय करेक्ट मीन्स, नॉट बाय करेक्ट मीन्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो गेन या लॉस सही तरीके से नहीं हो, यानी लॉफुल तरीके से नहीं हो, करेक्ट नहीं, लॉफुल, नॉट बाय लॉफुल मीन्स, मतलब लॉफुल तरीके से अगर नहीं किया जाए कोई गेन, या अगर लॉस कोई हो रहा है जो कि लॉफुल तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसको हम रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस बोलते हैं, ठीक है। रॉन्गफुल क्यों? क्योंकि वो लीगल मेथड से नहीं किया गया वो गेन। सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गेन, इफ समवन चीट्स अनदर पर्सन टू गेन सम फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है, अगर कोई मॉनेटरी गेन के लिए कोई इंसान किसी और को चीट करता है, तो वो क्या है? लॉफुल मीन्स है क्या? वो लीगल तरीके से वो गेन हो रहा है? नहीं, दैट इज नॉट बाय लॉफुल मीन्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर उस तरीके से गेन हो भी जाए तो रॉन्गफुल गेन बोलेंगे। सिमिलरली अगर लॉफुल तरीके से कोई लॉस नहीं हो रहा है, इफ एनी लॉस इज इनकर्ड अपॉन अस इन बाय एन अनलॉफुल मीन्स, किसी अनलॉफुल मीन्स के जरिए हमें कोई लॉस हो रहा है, तो हम उनको लॉफुल लॉस बोलेंगे। फाइन, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट we will be reading section 33. Section 33. What is section 33? It is act and omission. It's a big word. Act and omission. Two words are explained in section 33. Act means any deed that we do. कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको हम एक्ट बोल सकते हैं। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसको हम एक्ट बोल सकते हैं। फाइन, सपोज आई एम वॉकिंग फ्रॉम हियर टू देयर, आई एम टीचिंग, दिस इज एन एक्ट। ओमिशन मीन्स व्हेन आई एम नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। तो अब मैं बैठी हूं, कुछ और नहीं कर रही हूं, तो क्या मैं ओमिशन कर रही हूं? नहीं, ओमिशन मतलब नॉट परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटी। फाइन, I will give an example. For example, if
two people A and B are sitting around a swimming pool. This is the swimming pool and two people A and B are sitting here. Fine. Now one person C dives into the swimming pool. Dives into the swimming pool. Now this A is here safety guard. Safety guard. This person A is the appointed safety guard of this swimming pool. Fine. एक स्विमिंग पूल का अपॉइंटेड सेफ्टी गार्ड है ए एंड अ पर्सन सी डाइव्स इन द स्विमिंग पूल एंड डज नॉट नो स्विमिंग. सो दिस पर्सन इज ड्राउनिंग हियर. ये यहाँ डूब रहा है और यहाँ पे ये ए बैठा है एंड वन पर्सन बी इज ऑल्सो सिटिंग हियर जो एक रैंडम इंसान है. बी ऑल्सो नोज स्विमिंग. बी को भी स्विमिंग आती है बट वो एक रैंडम इंसान है. वो यहाँ पे बैठ के देख रहा है. A is also not going to save this person and B is also not going to save this person. दोनों में से कोई इस आदमी को सेव करने के लिए नहीं आ रहा है. फाइन. तो अब B और A दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहे हैं. बट दिस ओमिशन इज फॉर A. A is doing omission here. Omission here. ठीक है. Omission is done by A. B करता है omission? नहीं. Why? Because A is a appointed safety guard of this swimming pool and A is not performing his legal duty. So omission is when one person is not performing his or her legal duty. Omission is also called as illegal omission. It is also called as illegal omission. Okay. This omission is also called as omission मतलब not performing legal duty. If a person is not performing his or her legal duty, then that is called as illegal omission. जबकि यहाँ B भी बैठा हुआ है जिसको स्विमिंग भी आती है and B is also not going and saving the person C. लेकिन क्योंकि ये B की legal responsibility नहीं है तो उसने omission नहीं किया है. फाइन. इसके ऊपर चॉइस है कि ये सेव करना चाहे तो करे या नहीं, बट इसके पास चॉइस नहीं है. ये इसकी लीगल ड्यूटी है. ही इज द अपॉइंटेड सेफ्टी गार्ड देयर. ओके. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड इलीगल ओमिशन. ओमिशन क्या होता है समझ आ गया होगा सबको. तो एक्ट क्या होता है जब हम कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं. फाइन. इफ वी डू एन एक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई परचेज अ गन एंड गिव टू अ पर्सन देन दैट इज एन एक्ट डन बाय मी. ठीक है. अब वो गन सिर्फ परचेज करके मैंने दिया है तो वो एक एक्ट है. या इफ आई गिव अ पर्सन अ नाइफ दैट इज एन एक्ट डन बाय मी. बट इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग माई लीगल ड्यूटी दैट इज एन ओमिशन ऑन माई पार्ट. तो इस पूरे एक्ट में जहां भी एक्ट वर्ड यूज किया गया है, द वर्ड एक्ट वेयर एवर इट इज यूज्ड, इट विल इंक्लूड एक्ट एंड इलीगल ओमिशन. एक्ट विल इंक्लूड एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन. ओके. दोनों चीजें एक्ट के अंडर आ जाएंगी. फाइन. देन वी विल स्टडी सेक्शन 34. कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन मतलब इस वर्ड से ही समझ आ रहा है
कॉमन इंटेंशन मतलब पहले तो एक इंसान से ज्यादा लोगों की इंटेंशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। नाउ ये 3 लोग हैं ए बी सी, ये तीनों अगर कोई एक्ट करते हैं, इफ मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, सेवरल पर्सन्स अगर एक एक्ट कमिट करते हैं, यानी मोर देन 1 पर्सन अगर एक एक्ट कमिट करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ, ये तीनों एक्ट कमिट करते हैं चाहे वो अलग अलग एक्ट हो, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ अचीविंग कॉमन इंटेंशन, ठीक है, यानी क्या है, ए बी सी, मोर देन 1 पर्सन, आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 3 पीपल बट आई मीन मोर देन 1 पर्सन, 2 भी हो सकते हैं यहाँ पे ए और बी, अगर एक से ज्यादा इंसान अगर एक इंटेंशन, एक पर्टिकुलर ये कॉन्सिक्वेंस को रीच करना चाह रहे हैं, ये कॉन्सिक्वेंस, all 3 are willing to achieve this one consequence, एक consequence को achieve करना चाह रहे हैं तीनों, and for that they are doing an act in furtherance, मतलब इस डायरेक्शन में, to achieve this particular consequence, consequence मतलब रिजल्ट, ठीक है, अगर एक ही रिजल्ट पे पहुंचने के लिए ए बी सी 3 लोग अगर एक्ट्स कर रहे हैं जिन तीनों का इंटेंशन सेम है, इन फर्दरेंस ऑफ अचीविंग कॉमन इंटेंशन, यानी टू अचीव अ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ मतलब टू अचीव, ठीक है, इसके डायरेक्शन में, इस कॉन्सिक्वेंस को अचीव करने के लिए अगर ये तीनों एक्ट कर रहे हैं, तो each one of them, A will be punished as if he has done this act alone. Fine. Similarly, B will be punished as if B has done this act alone. For example, A, B and C are going to murder a person D. ठीक है, किसी एक D का मर्डर करने के लिए A, B and C रेडी होते हैं, A, B and C are have common intention to murder D, ठीक है, kill D। अब इस एक्ट को अचीव करने के लिए क्या होता है, A जो है ये एक गन परचेज करके लाता है, ठीक है, परचेज करके बी को देता है, ए गिव्स द गन टू बी, देन बी इज ऑल्सो विलिंग टू किल डी, सो ए एंड बी प्लान टुगेदर दैट बी विल इंस्टिगेट सी, कि बी सी को भड़काएगा, जो भी इसका दुश्मन है, ठीक है, बी का दुश्मन सी भी है, तो ए क्या करता है, गन खरीद के लाता है और बी के साथ मिलके प्लान बनाता है कि सी को भड़काते हैं और भड़का के डी को मरवा देते हैं, मतलब वी विल इंस्टिगेट सी टू किल डी, ठीक है, हम लोग सी को इंस्टिगेट करेंगे और डी की डेथ कॉज करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं इंडिविजुअल, ए परचेज्ड द गन, then A made a plan with B and then B instigated C. B instigated C. A purchased the gun, then made a plan with B, and then B instigated C and C went and killed D, ठीक है,
C killed D. अब जब ये C ने D को मार दिया तो कौन पनिशेबल होगा? A will be also punished for murder, B will be also punished for murder and C will also be punished for murder. क्यों? क्योंकि चाहे A ने सिर्फ गन खरीदा हो और कुछ नहीं किया, बट इसकी इंटेंशन तो थी ना, इसकी इंटेंशन थी D को किल करने के लिए. B ने सिर्फ प्लान बनाया और C को इंस्टिगेट किया, बट C still had the intention to kill a person and C killed D. ठीक है, तो क्या जरूरी है? मतलब act is not punishable, intention is punishable. समझ गए? Act alone is not punishable, intention is required, intention is punishable majorly. ठीक है, तो इंटेंशन किसकी थी? तीनों की इंटेंशन थी कॉमनली, तो इसी को बोलते हैं कॉमन इंटेंशन. क्या बोलते हैं कॉमन इंटेंशन? When a person, more than one person are willing to achieve a common goal and do acts in furtherance of achieving the common goal, मतलब do acts towards achieving the common goal, then all three of them will be held liable as if they have done the act alone. यानी A ने अकेले ने इस पूरे एक्ट को किया, इस तरीके से A को पनिश किया जाएगा. सिमिलरली B को भी ऐसे पनिश किया जाएगा जैसे B ने अकेले ये पूरा एक्ट किया, और C को भी. मतलब all three of them will be punished for murder. यानी if you are having common intention and doing act, बहुत जरूरी क्या है? एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए एक एक्ट करने के लिए, और देयर शुड बी सम एक्ट विच यू डू टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन इंटेंशन. ठीक है, आप कोई ना कोई एक्ट करें. अब क्या है, मेरे दिमाग में आए कि मैं किसी को मार दूंगी, बट मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रही हूं, ये सिर्फ मेरे दिमाग में है. टिल इट इज इन समवन्स ब्रेन आप कैसे पनिशेबल कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आपको पता भी कैसे चलेगा कि कोई और क्या सोच रहा है. बट अगर कोई भी पर्सन किसी भी कॉन्सिक्वेंस को, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए एक्ट कर रहे हैं, and they are having common intention, if more than one people are committing acts and they are having common intention towards achieving a common goal, then they will be booked under common intention. फाइन. और उन तीनों को ऐसे पनिश किया जाएगा जैसे कि उन्होंने सिंगल हैंडेड वो एक्ट को कमिट किया हो. फाइन. नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. If you have not understood anything explained today, please write in the comment section. I will discuss it again and make you understand again in my next video. Thank you so much. Also, please like, share and subscribe my channel if it is making learning law easier for you. And also write in the comment section if you need me to explain some other topic also from some other laws. Fine, otherwise I will be going on with IPC. I will finish IPC, then I will take up any other subject. By then, if you want me to discuss any other subject first, just let me know. I will discuss it in a day or two. Thank you so much.